السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان پلس اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ کمل عثمان۔ اور آج ہمارا ٹاپک ہے جو آج سب نے نیوز جیسے کہ سنی ہے، حکومت نے انیشیٹو لیا ہے کہ سارے تعلیمی اداروں کو بند کیا جا رہا ہے 26 نومبر سے۔ تو ہم اس چیز کو آج ڈسکس کریں گے کہ یہ اسٹیپ کس طرح سے فائدہ مند ہے اور اس کے کیا کیا نقصانات ہیں۔ اس کے لیے ہمارے ساتھ ہیں ہمارے سینئر جرنلسٹ امتیاز سردار امتیاز صاحب، ان سے ہم ڈسکس کریں گے، ان سے پوچھیں گے اور وہ ہمیں بتائیں گے ان اپنے نظریات اور اپنے اوپینینس کہ وہ اس چیز کو کس طرح سے دیکھتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام کمل، کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ جی آپ نے نیوز تو دیکھی ہوگی، ابھی کچھ دیر پہلے ہمارے جو شفقت محمود صاحبہ انہوں نے یہ اعلان کیا کہ 26 نومبر سے پھر سے تمام تعلیمی ادارے، اسکول، کالجز، یونیورسٹی سب کچھ بند کیا جا رہا ہے اور اسٹوڈنٹس کی آن لائن پڑھائیاں پھر سے شروع ہو رہی ہیں جیسے کہ پچھلے 6-7 مہینوں سے چل رہا ہے۔ تو آپ اس چیز کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے میرے خیال سے تو یہ کچھ اچھا ڈیسیجن نہیں ہے۔ پہلے آپ نے 8 مہینے 6-7 مہینے بچوں کے ضائع کر دیے، الٹرنیٹ کوئی پروگرام جو ہے وہ آپ پرووائڈ نہیں کر سکے بچوں کو، اسپیشلی ایٹ اسکولس لیول۔ تو بچوں کا تعلیمی جو ہے وہ بہت زیادہ ارج ہو رہا ہے، اور اس کو دیکھنا چاہیے، اس کی کوئی الٹرنیٹ پالیسی ایس او پیز پہ آپ عمل درآمد اچھے سے کروا سکتے ہیں۔ اس کے اور بھی 100 جو ہے وہ روٹس ہیں، اور بھی 100 وے ہیں، اور بھی 100 طریقے ہیں جن پہ آپ اگر چل سکتے ہیں، جن کو اگر آپ ساتھ لے کے چل سکتے ہیں تو آپ جو ہے وہ بچوں کو تعلیم پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ دیکھیں یہ کووڈ-19 پینڈیمک سے پاکستان میں نہیں ہے، پوری دنیا میں چل رہا ہے۔ ہم ویسٹ اگر کمپیئر کریں گے اپنے تعلیمی اداروں کو یا اپنا تعلیمی اسٹرکچر، تو ہم بہت لو لیول پہ ہیں، ہم ہیں تھرڈ ورلڈ کنٹری۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اس طرح کا ہم اپنا اسٹرکچر لے کے چلیں۔ پہلے 6-7 مہینے اپنے بچوں کے ضائع کر دیے ہیں، اب اگر 2-4 مہینے کی چھٹیاں مزید کریں گے تو اس کا مطلب ہے پورا سال، پورا تعلیمی اسکیجول آپ کا جو ہے وہ خراب ہو چکا ہے۔ آلدو یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے، کوئی اس طرح کی پرابلمز آتی ہیں، کوئی جس طرح کی چھٹیاں، مطلب جس طرح کا یہ پینڈیمک پہلے آج سے پہلے نہیں آیا، تو فرسٹ ٹائم ایکسپیرینس تھا۔ جی جی اس میں آپ کرتے کیا ہیں، ایک دفعہ اگر آپ چیزیں بند کر دیتے ہیں تو ان کے پیچھے آپ اسٹریٹجیز بناتے ہیں، ان کے پیچھے آپ پلاننگ کرتے ہیں، تاکہ اگر نیکسٹ ٹائم ہمیں یہ چیزیں فیس کرنی پڑے تو ہم نے اس کو بہتر طریقے سے کس طرح لے کے چلنا ہے۔ آپ کہہ رہے تھے ایک جو نصاب ہے تعلیم کا ہم نے وہ ساتھ لے کے چلنا ہے۔ اب دیکھیں 6-7 مہینے اسکول بند رہے ہیں تو اس جو انیشیٹو تھا آپ اس کو امپلیمنٹ کر سکتے تھے، لیکن آپ نے نہیں کیا۔ آپ صرف یہ اپنے قوم کو لگا رہے ہیں لارا کہ ہم جو انشاءاللہ ون سلیبس سسٹم لا رہے ہیں، لیکن کب لا رہے ہیں یہ نہیں پتا۔ اب آگے جائیں آپ کے آن لائن سسٹم پہ، یونیورسٹی تو دے رہی ہیں آن لائن تعلیم، آپ اور میں ایز اے اسٹوڈنٹ بھی آن لائن تعلیم حاصل کر رہے ہیں، لیکن اس میں ڈیفیکلٹیز بہت زیادہ ہیں، اس میں کنیکٹیوٹی ایشوز ہیں، اس میں ہے کہ آپ پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتے ایز کلاس میں جس طرح آپ باقی کر سکتے ہیں۔ لیکچرز دے رہے ہیں اور اپنا ٹائم پاس کر رہے ہیں۔ جو لرننگ پروسیس ہے، دیکھیں یونیورسٹیز میں آتا ہے بندہ، کالجز میں آتا ہے لرننگ کے لیے، پڑھتے تو آپ اسکول لیول، اب لرننگ پروسیس جو ہے وہ اتنا ڈسٹرب ہو رہا ہے کہ وہاں بیٹھ کے آپ فزیکل کلاس نہیں ہو رہی، بجائے اس کے کہ آپ ایس او پیز کے ساتھ۔ اب دیکھیں بازار کھلے ہیں، باقی تمام سارے کھلے ہیں، ہر چیز کی اجازت ہے، لیکن صرف جو اسکولز اور کالجز اور یونیورسٹیز ہیں وہ بند کی جا رہے ہیں۔ آپ اگر یہ بند کریں گے تو آپ اپنے جو بچے ہیں، اپنا تعلیمی نظام، اس کو کس طرح آگے لے کے چل سکتے ہیں، کس طرح بیٹر چیزیں جو ہے وہ پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ پہلے ہمارا تعلیمی نظام اس قدر بوسیدہ ہے کہ آپ ایک ایم ایس سی فزکس کو لے لیں جسے تقریباً 25% سائنٹسٹ ہونا چاہیے، لیکن وہ رٹے کس طرح ماسٹر ہے کہ اسے ایک بلب بنانا نہیں آتا، اسے نہیں پتا کہ کون سی وائر جو ہے وہ کاٹ دی جائے تو بلب جو ہے وہ جو جلنا ہے وہ بند ہو جائے گا۔ تو آپ کا تعلیمی نظام پہلے ڈیٹالائزیشن پہ بیس کرتا ہے۔ آپ بجائے اس کے کہ کوئی الٹرنیٹ پروگرام کا پرووائڈ کریں اپنی قوم کو، آپ کا مستقبل ہے، دیکھیں تعلیم آپ کی قوم کا مستقبل ہے۔ اگر اس مستقبل کے ساتھ آپ کھیلیں گے، آپ کہیں گے جی ہماری معیشت اوپن رہے گی، بازار اوپن رہے گی، کیونکہ ہم معیشت اگر لاک ڈاؤن مکمل کریں گے، معیشت باقی جو کاروباری سیکٹرز ہے وہ بند کریں گے، معیشت کا بٹھا بیٹھ جائے گا۔ اگر آپ تعلیم کا نظام بند کریں تو آپ کی قوم کا بٹھا بیٹھ جائے گا۔ لیکن یہ چیزیں بجائے سمجھنے کے وہ انہوں نے اس طرح کوئی پراپر پلاننگ نہیں کی، اور یہ سمجھا دو کہ وی ہیو ڈن آلسو کہ ہم نے پہلا جو ہے وہ سیشن کمپلیٹ کر دیا کرونا کا۔ ہم پہلے جو کرونا پینڈیمک جو پہلی لہر سے اسے نکل چکے ہیں، تو ہماری ہر دفعہ آپ نے دیکھا نا ہم بڑی جلد باز قوم ہے۔ آپ نے دیکھا کہ پورے عالمی لیول پہ ہم جہاں گئے ہم نے یہی ڈھول پیٹنا شروع کر دیا کہ جی وی ہیو ڈن، ہم تو کر چکے ہیں، ہم نے کرونا کو کنٹرول کر لیا۔ ہم تو کر ہمارے پاس یہ عقل ہی نہیں تھا کہ بھائی کرونا کنٹرول نہیں ہم نے کیا، کرونا صرف گرمیوں کی وجہ سے اس کی جو رفتار ہے وہ سلو ڈاؤن ہو گئی تھی، آلدو وہ یہ ہم پہلے نے سے کنٹرول پتہ نہیں تھا۔ کیا، وہ ویدر کی جی 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 ویدر کنڈیشن اس طرح کی تھی کہ وہ کنٹرول ہو گیا، مطلب اس کی جو لہر ہے وہ کم ہو گئی۔ لیکن جیسی سردیاں آئیں
हर दी शऊर बंदा जानता था, जितने तजिया निगार हैं, जितने एनालिस्ट हैं, वो बार बार यही कह रहे थे कि खुदा के लिए आप कोशिश करें, आप इस चीज को इस तरह मजाक में ना लेके जाएं, आप ना कहें कि हमने कंट्रोल कर दिया। आपके वेदर स्लो डाउन की वजह से एक तो आपका इम्यूनिटी लेवल, आप जिस माशरे में जिस खिते में रहते हैं, दुनिया के जिस खिते में रहते हैं, वहां के लोगों का इम्यूनिटी लेवल बड़ा स्ट्रॉन्ग है। अगर गोरों पे हिट किया या अमेरिकन पे हिट किया कोरोना ने सबसे ज्यादा, तो वो एक साफ सुथरे माहौल में रहते हैं। हमारा जिस तरह का माहौल है, हमें तो 10 तरह के इन्फेक्शन पहले हो चुके होते हैं, बुखार हो चुका है, इन्फेक्शनरी बुखार हो गया, जुकाम हो गया, हमें तो इन्फेक्शन की वजह से मलेरिया हो गया, 10 बीमारियां पहले हो चुकी होती हैं। तो हमारा इम्यूनिटी लेवल स्ट्रांग होने की वजह से लोग सर्वाइव ज्यादा करेंगे, हमारे पास डेथ टोल जो है वो बहुत कम होगा। बजाय आप अमेरिका से कंपेयर करें, बर्तानिया, ब्राजील, आप क्या नाम है, मैक्सिको से कंपेयर करें, तो हमारा डेथ टोल कम था। उसकी वजह ये नहीं थी कि हमने कोई प्रॉपर सिस्टम लेके चले, उसकी वजह ये थी कि नेचुरली तौर पे अल्लाह के करम से इम्यूनिटी लेवल हमारा इतना स्ट्रांग था कि हम उसको लेके चले। अब आप कारोबारी इदारे खोल रहे हैं, आप इंडस्ट्रियां खोल रहे हैं एसओपीज के साथ, सारे काम एसओपीज के साथ कर रहे हैं, आपके बाजार खुले, आप अगर इवन बाजार में जाए ना तो बंदा दंग रह जाता है कि इतनी मखलूक आखिर आ कहां से गई, बंदे के साथ बंदा जुड़ा हुआ है। तो वहां कोरोना फैलने का खदशा नहीं है, लेकिन तालीमी इदारे आपने बंद कर दिए और कोई अल्टरनेट प्रोवाइड भी नहीं किया। जी बेशक जी। जैसे कि पहले 7 महीनों में आपने देखा है कि कोरोना की वजह से बच्चों की तालीमी निज़ाम पे बहुत बुरा असर पड़ा है, कि वही जैसे आपने जैसे कि पहले बात की है कि कोई अल्टरनेटिव नहीं था। यूनिवर्सिटीज़ में फिर उन्होंने कोई ज़ूम के ज़रिए ऑनलाइन क्लासेस कर दी, लेकिन स्टूडेंट्स जो प्राइमरी स्कूल्स हैं, सेकेंडरी कॉलेजेस हैं, उनके लिए कुछ भी नहीं इस तरह से लिया गया। प्राइमरी स्कूल्स में कहा गया कि चैनल पे आएगा, एक चैनल बनेगा नेशनल टीवी, वहाँ पर आएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं नज़र आया कहीं पर कोई प्रॉपर तरीके से, जस्ट फॉर्मेलिटी पूरी गई। तो आगे भी ये 2 महीनों के लिए जैसे कि ऐलान में यही कहा गया है कि 25 दिसंबर तक इसी तरह रखा जाएगा, ऑनलाइन क्लासेस होंगी, जारी रहेगी। तो आपको क्या लगता है कि इससे क्या होगा? देखिए, आपने अपनी बात इसमें क्लियर कर दी, आप कह रही हैं कि कोई अल्टरनेट प्रोवाइड नहीं किया गया स्कूल्स लेवल पे। अब देखो, देखें जो आपके प्राइवेट स्कूल्स हैं, बीकन हाउस है, आपके लीडिंग सिटी स्कूल्स हैं, आपके लीडिंग प्राइवेट स्कूल्स, वो तो कोई अल्टरनेट आपके बच्चों को प्रोवाइड कर देंगे, अपने बच्चों को प्रोवाइड कर देंगे। अब मसला है सरकारी स्कूल का और लो लेवल के जो अपना प्राइवेट सेक्टर है उसका। अब देखिए, कॉलेजेस में भी इवन उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं, और यूनिवर्सिटीज में ऑनलाइन। ठीक है ना, कुछ ना होने से ये होना बेहतर है कि आपको समझ एटलीस्ट कोई 1% तो आ रही है, आप एंगेज तो हैं, आप टाइप तो हैं तालीम के साथ, आप बिल्कुल साइड भी नहीं होंगे। रदर देन आप प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी लेवल और मिडिल लेवल पे आ जाएं, हाई एजुकेशन की तरफ आ जाएं, 10th की क्लासेस की तरफ आ जाएं, वहां बच्चों का नुकसान ये हो रहा है कि कोई किसी किस्म का अल्टरनेट प्रोग्राम आपके पास नहीं है। अब आप कह रहे हैं कि जो टीचर्स हैं वो होमवर्क तैयार करेंगे, तो भाई आप दिन रात लगा के इतनी सख्त मॉनिटरिंग करके इतना स्ट्रक्चर बना के आप सरकारी स्कूलों का 1% लेवल जो है वो इम्प्रूव नहीं कर सके। जब उनका 1% लेवल इम्प्रूव नहीं कर सके, तो आप किस तरह समझते हैं कि आपके जो गवर्नमेंट सेक्टर के टीचर्स हैं, जो लो लेवल प्राइवेट सेक्टर के टीचर्स हैं, वो बच्चों को इस तरह एंगेज करेंगे और बच्चों को होमवर्क करेंगे देंगे और बच्चे वो कंप्लीट करेंगे? सरासर मतलब ये कोई, मैं तो समझता हूँ कि मैं समझता था कि पहले कि शफकत महमूद साहब बड़े डिसेंट आदमी हैं, चीजों को अच्छे तरीके से लेके चलेंगे, लेकिन आज तो ये बड़े फेल साबित हुए हैं। कोई बकायदा प्लानिंग नहीं है भाई, आपके पास टाइम था, आप बैठे थे, आपने चीजों को लेके चलना था। आपके कौम का मुस्तकबिल अब सेकेंडरी प्राइमरी लेवल से बच्चा नहीं पढ़ के आएगा, उसकी बेस मजबूत नहीं होगी, तो आगे जाके यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में क्या करेगा? आप तो फिर वही निजाम ला रहे हैं कि चुप करके पास किए जाओ और बच्चे को आगे भेज जाओ, और जैसे वो 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में जाता है वहां जाके फेल हो जाता है। अगर आपने प्रॉपर, आपका पहले मैंने अपने प्रीवियस क्वेश्चन में जवाब दिया था कि आपका तालीमी निजाम इतना ज्यादा बोसीदा है कि आप सोच नहीं सकते, उसके ऊपर आप नैले पे दैला ये लगा रहे हैं कि देखिए क्या छुट्टियों के अलावा कोई और ऑप्शन था? हाशिर भाई सवाल पूछ रहे हैं, मैं उसका भी जवाब देता हूँ। बिल्कुल ऑप्शन था, आप एसओपीज के साथ चले। आपने कहा था कि एक दिन आप बच्चों को बुलाएंगे, दूसरे दिन आप दूसरे बच्चों को बुलाएंगे, आप जो अपना समाजी डिस्टेंस है, जो आप सोशल डिस्टेंस है, उसको बरकरार रखें। एटलीस्ट आप अगर दिन में ज्यादा नहीं कर सकते ना, तो हफ्ते में 4 दिन कर लें, 2 क्लासेस कर लें, लेकिन बच्चों को तकरीबन 2-4 घंटे स्कूल में अगर मिलेंगे, वो तालीम के साथ टच रहेंगे, उन्हें कुछ ना कुछ समझ आएगी। आप एसओपीज के साथ क्यों नहीं अमल दरामद करवा सकते? आपकी हुकूमत है। जो टीचर आप देखें गवर्नमेंट सेक्टर में, तो एसओपीज पे अमल कराना बहुत बहुत ज्यादा आसान है, और प्राइवेट सेक्टर में उससे ज्यादा आसान है। अब मैं बताता हूँ किस तरह आसान है। गवर्नमेंट सेक्टर में इस तरह आसान है कि आप मॉनिटरिंग लगा दें, जो हेडमास्टर, जो आपके स्कूल का प्रिंसिपल आपकी एसओपीज पे अमल दरामद नहीं करके उसे फारिग करते जाए। 1-2 फारिग होंगे, 1-2 को आप मिसाल बनाएंगे, दूसरे खुद ब खुद जो है उस चीज पे अमल दरामद शुरू कर दें। और अगर प्राइवेट स्कूल नहीं कर रहा, तो प्राइवेट स्कूल को चुप करके ताला लगा दें हफ्ते के लिए,
उसे हफ्ते के लिए एक दफा उसे वार्निंग दें, हफ्ते के लिए ताला लगाएं, वो खुद एसओपीज पे। और ऐसी कोई बात नहीं है, टीचर्स जो हमें पढ़ा के जिन्होंने आज हमें यहाँ भेजा है, इससे पहले जितने कोई जर्नलिस्ट बनना है, कोई डॉक्टर बनना है, कोई इंजीनियर बनना है, उस्ताद की वजह से ही बना है। तो उस्ताद आपके मेरे ख्याल में तो माँ बाप से ज्यादा प्यार करते हैं, ज्यादा लविंग और केयरिंग होते हैं। तो बच्चों की सेहत का तो उन्हें तो ज्यादा ख्याल होगा, और आल्दो बच्चों की सेहत का ख्याल नहीं करेंगे तो उन्हें के अपने लिए कोई प्रॉब्लम्स और मसाइल पैदा हो सकते हैं, खुद भी कोविड हो सकता है। तो इससे बेहतर कि आप स्कूल्स बंद कर दें, आप यूनिवर्सिटीज बंद कर दें, आप कॉलेजेस बंद कर दें। आपने चलो यूनिवर्सिटीज में अल्टरनेट प्रोवाइड कर दिया जूम का, आल्दो उस पे रिजर्वेशंस हैं स्टूडेंट्स की, जो लो लेवल के स्टूडेंट हैं, मतलब ज्यादा पढ़ने वाले या ज्यादा नहीं पढ़ने वाले, सबको मसला है, कोई पढ़ने वाला है कोई नहीं पढ़ने वाला, उस सबको मसला आ रहा है कि यार मैंने सीखने जाता था यूनिवर्सिटी, अब मेरे सीखने का अमल देखे, पढ़ने में और सीखने में कमल बहुत ज्यादा फर्क होता है। हमारा सबसे मसला क्या है, हमारा पूरा तालीमी स्ट्रक्चर जो है वो पढ़ने पे बेस करता है, सीखने पे बेस नहीं करता। तो बजाय आप चीजों को अच्छे तरीके से, अच्छे प्रॉपर वे के साथ लेके चलें, और आप जो प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल हैं उन्हें एसओपीज के साथ ओपन करें। हफ्ते में आप 2 दिन क्लासेस लें, हफ्ते में 3 दिन क्लासेस लें, एक दिन एक बच्चों को बुलाएं, एक दिन दूसरे सेट को बुलाएं, और उनके बाकायदा आप वो क्या कहते हैं कि आपके पास ऐसी डिवाइसेस होनी चाहिए, उनका टेम्परेचर चेक करें, बाकायदा एसओपीज। उन्हें मास्क के साथ साथ देखें ग्लव्स का इस्तेमाल। देखो मास्क का इस्तेमाल हर कोई बंदा बात कर रहा है कि मास्क का इस्तेमाल करें, मास्क का इस्तेमाल करें, मास्क का इस्तेमाल, आप ग्लव्स का इस्तेमाल भी करें। मैं आप किस तरह कि मास्क आपने यूज किया हुआ है, आपने किसी चीज को टच कर दिया, कोरोना वायरस आपके हाथों में आ गया, अब हाथों से वो कहाँ जाता है, आपके गले में जाता है, तो तब आप इन्फेक्शन होते हैं। अब आप फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मास्क उतारते हैं और ऐसे ही मुंह पे हाथ लगा देते हैं, तो आपके तो टच हो गया है सेंसिटिव जगह पे, और आपका कोरोना फैलेगा। अगर आप उसी के साथ आपने ग्लव्स यूज किए हुए, किसी चीज को आप अगर ग्लव्स उतारें, ग्लव्स दोबारा धो दें, दिन में मतलब आप पहने रखें, शाम को आप धो दें, सुबह दोबारा ग्लव्स पहने, इससे 50% चांसेस कोरोना के और ज्यादा कम हो जाएंगे। लेकिन आप बैक टू द स्कूल टॉपिक के, बच्चों का बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। केवल मैं देख रहा हूँ, मैंने इस तरह के लड़के और बच्चे देखे हैं कि बंदा सोच भी नहीं सकता कि मतलब मैंने सरकारी स्कूल्स के बच्चे देखे हैं, सारा दिन गलियों में फिरते हैं, और एक तो माँ बाप को तंग करते हैं। कल मेरी एक दोस्त से बात हुई, ये मैं ऐड करना चाहता हूँ, मैंने कहा जी मैं अपना दोबारा स्कूल बंद कर रहे हैं, कहता है वो आप खुद 2 बच्चों का बाप है, तो कहता है भाईजान मसला बच्चों का नहीं बनेगा, मसला बनेगा उनकी माओ का, वो बड़ी तंग पड़ेंगी। उन्होंने अल्लाह अल्लाह करके पहले स्कूल खुलवाए हैं कि मुसीबतों से जान छूटे और उधर ही बढ़ जाए, अब वो सारा दिन और ज्यादा तंग करेंगे। आप घर वालों की जो ज़हनी स्ट्रेस है ना, अब देखिए एक पूरा जो है ना, एक रिसर्च की गई कि वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस का बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन। वो क्यों हुआ है, उसमें सबसे बड़ा फैक्टर जो मैं समझता हूँ वो आपके बच्चे हैं। वो शरारतें करते हैं, औरतों पे बर्डन ज्यादा पड़ता है, वो मतलब इस तरह की चिड़चिड़ी हो जाती हैं, और इससे उनके घर में मसाइल बनते हैं। और मसाइल जब पैदा होते हैं वो ज्यादातर जो हमारा, क्योंकि हम 80% मिडिल क्लास हमारे पाकिस्तान में, मतलब जो दरमियाना तबका है वो सबसे ज्यादा है, ठीक है, फिर आपकी लोअर क्लास आती है, फिर आपकी अपर अपर क्लास में तो वो टैकल कर लेते हैं। अब मिडिल क्लास बंदा पहले इतना महंगाई की वजह से, हर चीज की वजह से वो पिस रहा है, वो मर रहा है पहले, उसकी वजह से उसकी ज़हनी स्ट्रेस इतना बढ़ गया है, और ऊपर से उसके घर के मसाइल, सारा दिन बच्चे घर में रहेंगे, उनके लिए, उनके माँ बाप के लिए इश्यूज पैदा कर रहे हैं। तो मेरा हुकूमत से सिर्फ एक ही है क्वेश्चन के, काइंडली खुदा के लिए आप अल्टरनेट प्रोवाइड करें। आप एसओपीज के साथ बच्चों को, आप बाजार खुले, आपके शॉपिंग मॉल्स खुले हैं, आपके क्रिकेट और हॉकी ग्राउंड, स्पोर्ट्स के ग्राउंड खुले हैं आपके, हर चीज। अब देखो क्रिकेट और इंटरनेशनल बायोस्फीयर बबल में, तो भाई ये भी तो एसओपीज भी तो बायोस्फीयर बबल ही है। और कितने परसेंट आपने कोरोना केसेस निकाले हैं स्कूल में, मेरा ये सवाल है ना गवर्नमेंट अथॉरिटी से, कितने परसेंट आपने निकाले हैं, कितने परसेंट केसेस हैं? कोई 0.0001% केसेस हैं आपके टोटल, अगर कोरोना केसेस मिला रहे उसमें स्कूल और कॉलेज के बच्चों के, यूनिवर्सिटीज के बच्चों से। तो आप उन्हें बजाय आप उन्हें तालीम के साथ टच रखें, आप उन्हें और ज्यादा दूर कर रहे हैं, और इससे बच्चों के मैं कहता हूँ मुस्तकबिल पे बहुत बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। जी बिल्कुल ठीक है। अब जरा एक और सवाल जरा दूसरी नोयत का, मैं आपसे ये, आपको क्या लगता है कि क्या स्कूल बंद करने का फैसला करने की जो हकीकत वो कोरोना की वजह से बंद किया गया, या फिर हुकूमत जो पीडीएम के जलसों की वजह से ये फैसला करने पर मजबूर हो गई है? देखिए बड़ा क्रिटिकल सवाल है, और इस पे डिबेट लाजमी होगी, या इस पे डिबेट लाजमी होगी, और डिबेट हो भी रही है, और डिबेट आगे बढ़ेगी। मैं इसे एक बहुत बड़ा, मैं इसे टोटल मतलब ये वजह नहीं समझता, लेकिन इसे एक बहुत बड़ा फैक्टर जरूर समझता हूँ
देखिए जिस तरह अब जलसे जुलूसों से एक पहली बात है, हुकूमतें नहीं गिरती, ये पक्की गारंटी वाली बात है। अगर मतलब धरनों से और जलसों से हुकूमत गिर जाती तो पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़े धरने और जलसे इमरान खान ने किए तो नवाज शरीफ की हुकूमत गिर जाती। आल्दो के एस्टेब्लिशमेंट भी नवाज शरीफ के खिलाफ थी, लेकिन फिर भी उनकी हुकूमत नहीं गिरी। लेकिन इससे प्रेशर जरूर बिल्ड होता है, इससे प्रेशर जरूर बिल्ड होता है। और इस प्रेशर को टैकल करने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि हम जो है वो स्कूल बंद करते हैं, और ये सॉफ्ट टारगेट था स्कूल बंद करना। देखिए आप अगर शॉपिंग मॉल बंद करेंगे, आप अगर फैक्ट्रीज बंद करेंगे, अगर अदर सेक्टर्स आप शादी हॉल्स बंद करेंगे और बाकी समाजी जो जितने भी इदारे हैं उन्हें बंद करेंगे, तो आपकी मैशत पे डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा। अब आपकी जो तालीमी निज़ाम है इसका कोई 0 पॉइंट समथिंग जो है ना वो आपकी जीडीपी में जाता है, ठीक है। तो ये आपका सॉफ्ट टारगेट था, लेकिन ये सब सॉफ्ट बम जिसे कहते हैं ना, ये सॉफ्ट टारगेट भी है और सॉफ्ट बम भी है। इससे आप एक हाइप क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप तालीम बाकी कारोबारी इदारे बंद करते हैं उससे हाइप क्रिएट होती है, आप तालीमी सेक्टर बंद करेंगे तो इससे हाइप क्रिएट होगी। जब हाइप क्रिएट होती है तो फिर लोगों के माइंड में ये डर सर जाता है कि वाकई कुछ इस तरह का हो रहा है, और हुकूमत ने ये जो इनिशिएटिव लिया स्कूल वाला, ये सॉफ्ट टारगेट भी है और ये सबसे बड़ा जो गोल भी और सबसे बड़ा जो सॉफ्ट बम कह सकते हैं, सॉफ्ट बम भी है। इससे आप लोगों को डरा जा सकते हैं, स्कूल जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है वो बंद करके। तो मेरे ख्याल में कमल ये बहुत बड़ा फैक्टर है। और अगर हुकूमत की यहाँ बदनीति इन्वॉल्व हुई तो देखें ये बदनीति खुल के सामने आ जाएगी। और अगर इस वक्त हुकूमत को कोई खतरा नहीं है ना, लेकिन आगे जाके अगर हुकूमत ने ये इस वजह से बंद किया, तो मैं आपको यहाँ इंश्योर कर रहा हूँ अपने इस प्रोग्राम में, पूरा पाकिस्तान हमें देख रहा है, मैं अपने इस प्रोग्राम में बता रहा हूँ कि हुकूमत के लिए बहुत ज्यादा अलार्मिंग सिचुएशन बनेगी अगर उन्हें पीडीएम की वजह से स्कूल्स और कॉलेजेस बंद किए हैं। तो ये इनके लिए खतरा बनेगा। वो भाई साहब डंडे वाली सरकार जो आपके साथ खड़े हैं वो भी इसकी फैसले की तौसीक नहीं करेंगे, और कहीं ना कहीं दराड़ें आल्दो पड़ चुकी हैं, तो वो दराड़ें जो है वो मजीद आगे शिकाफ का शक्ल इख्तियार कर सकती हैं और आपका जो सैलाब वाला बंद है वो टूट सकता है। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है, और अल्लाह ना करे इसमें इमरान खान हुकूमत की कोई बदनीति शामिल हो कि पीडीएम जलसों की वजह से उन्होंने ये फैसला लिया। आपको क्या लगता है कि हुकूमत ने जो ये फैसला किया इसकी जिम्मेदार हुकूमत खुद है या अवाम है? इसकी जिम्मेदार दोनों है। देखिए दोनों है। मैंने दूसरे सवाल में सबसे बल्कि पहले सवाल में की गालबन दूसरे सवाल में कहा था कि हमने ढिंडोरा पीटना शुरू कर दिया कि वी हैव डन यार, हम तो कर चुके हैं, हम बड़ी जल्दबाज कौम है। और जल्दबाज कौम का होने के साथ साथ इमरान खान की हुकूमत बहुत जल्दबाज है। उन्हें असल में मतलब ये कमल की ये सियासी लोग नहीं, इन्हें सियासत का पता ही नहीं है। कभी सियासी नहीं है ना तो ये इस तरह के ऐलानात कर देते हैं जो बाद में इन्हें पछताना पड़े। अब देखो मुराद सईद ने ऐलान किया था कि हम इंशाल्लाह एक दिन इमरान खान की हुकूमत आएगी, दूसरे दिन 200 अरब डॉलर पाकिस्तान में लाएंगे, और वो ऐसा गले का फंदा बना। असद उमर में स्टेज पे खड़े होकर ऑन द फ्लोर कहा था कि इंशाल्लाह 25 रुपए लीटर पेट्रोल करेंगे, आपने महंगा दिया। हम बिजली सस्ती करेंगे, आपने महंगी कर दिया। आपने कहा कि अगर महंगाई होती है तो वज़ीर आज़म चोर होता है। इस तरह के जो बयानात होते हैं वो सियासी कायदीन नहीं देते, बेसिकली ये सियासी लोग नहीं है। और यही सेम इनके साथ इश्यू आ रहा है कि इन्होंने बहुत ज्यादा ढिंडोरा पीटना शुरू कर दिया, अवाम होगी रिलैक्स। अब अवाम की भी बहुत बड़ी गलती है। बेसिकली मैं कहा करता हूँ और यहाँ भी शायद मैं कहूंगा और मुझे गालियां भी पड़ेंगी, लेकिन मैं कह रहा हूँ हम है पढ़े लिखे जाहिलों की कौम। मैं अनपढ़ लोगों को मुखातिब नहीं कर रहा, मैं पढ़े लिखे लोगों को कर रहा हूँ। हम आप मैं हम जैसे हजारों स्टूडेंट्स, हमारा ये फर्ज बनता है अपने घर वालों को समझाएं, अपने रिश्तेदारों को समझाएं कि भाईजान कोरोना एक बला है, एक खुदा का अजाब है, उससे हमने किस तरह निपटना है। बजाय इसके कि पढ़ी लिखी अवाम ये इनिशिएटिव ले। पढ़े लिखों के मुंह से मैंने कसम से सुना है, आप यकीन नहीं करेंगे, प्रोफेसर डॉक्टर्स को निकाल प्रोफेसर इंजीनियर इस तरह के पढ़े लिखे लोगों के मुंह सुना है भाई कोरोना शोरोना कोई नहीं। तो जब आपकी पढ़े लिखी अवाम ये कहेगी 50 बंदों में बैठ के यदि कोरोना कुछ नहीं है, तो फिर आप क्या समझते हैं कि जो आपके बाकी सेक्टर हैं, बाकी आपकी अवाम है, वो इस पर बिलीव करेगी कि बाकी कोरोना को बुला है। तो इसकी मैं कहता हूँ 70% गलती हुकूमत की है, 70% अवाम की है कि उन्हें चीजों को लेके चलना चाहिए था कि आप किस तरह कर रहे हैं। जी कमल। आपको आवाज आ रही है कमल मेरी? जी मुझे आपकी आवाज आ रही है। जी नेक्स्ट सवाल में आई हैव डन, ये सवाल मुकम्मल कर चुका हूँ, एक्चुअली जवाब सॉरी, इसका। ये नीचे एक
इमरान अहमद ने क्वेश्चन किया हुआ है, व्हाई सडनली इमरान खान पर्सपेक्टिव अबाउट लॉकडाउन चेंज। आई गेस आपको पहले उनका आंसर करना चाहिए। अच्छा जी, मैं इनका आंसर कर देता हूँ कि वो कहते हैं कि इमरान खान का पर्सपेक्टिव लॉकडाउन के बारे में चेंज क्यों हुआ। देखिए, पहले उन्होंने कहा था कि फुल लॉकडाउन बिल्कुल किसी सूरत नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने एक दफा वो पहले लॉकडाउन करके मजा चख चुके हैं कि जो मैशत जो है वो टेक ऑफ कर रही थी, मैशत जो है वो बेहतरी की तरफ जा रही थी, यकदम गिर गई। जब यकदम गिरी तो आपकी महंगाई देखें, सोच रहे थे कि महंगाई कम होगी, चीजें हालात बेहतर होंगे, लेकिन नहीं हुई, और ज्यादा महंगाई हुई। ये और ज्यादा महंगाई क्यों हुई? ये कोविड पेंडेमिक की वजह से और ज्यादा महंगाई हुई और महंगाई बढ़ना शुरू कर दी। अब अगर मतलब वो कंप्लीट लॉकडाउन उन्होंने पहले किया, लेकिन आल दो पहले वो स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ चले जाते, तो शायद इस तरह मीशत को नुकसान ना होता, और शायद इस तरह गरीब आदमी जो है वो फंसता ना, वो मुसीबत में ना आता। ये सेम हो गया। अब वो कह रहे हैं कि लॉकडाउन, उन्होंने इमरान का जो क्वेश्चन है मैं समझ चुका हूँ, उन्होंने कहा कि इमरान खान ने अपनी जो प्रीवियस तकरीर है उसमें स्पीच में कहा है कि हम अगर लॉकडाउन हुआ तो इसकी जिम्मेदार अपोजिशन होगी। देखिए, ये सियासी हरबे हैं अपोजिशन को डराने के, ये अपोजिशन को डराने के सियासी हरबे हैं कि भाईजान अगर आपने लॉकडाउन हमने तो कर देना है, फिर जो है वो कौम भूखे मरेगी और गालियां आपको पड़ेंगी, सियासत आपकी बर्बाद होगी, लेकिन वो कभी नहीं, क्यों नहीं करेंगे भाई? अगर करें तब भी उनकी हुकूमत है, ना करें तब भी उनकी हुकूमत है। और इस कौम में अगर इतना सियासी शऊर होता ना खान साहब, तो यहाँ पे जरदारी और नवाज शरीफ हुकूमत ना करते दो दो तीन तीन बार। यहाँ पे एक दफा जिस तरह केपी के लोगों को मैं सलूट करता हूँ। मैं बाखुदा समझता हूँ कि पाकिस्तान में अगर कुछ सबसे अवेयर पोलिटिकली कोई कौम है ना, तो वो हमारी पठान कौम है, हमारे केपी के लोग हैं। पाकिस्तान की तारीख में जब से पाकिस्तान बना है, इंतखाबात हुए हैं, उन्होंने किसी गवर्नमेंट को सेकंड चांस नहीं दिया, मौलाना फजल रहमान को नहीं दिया, किसी पीटीआई को तारीख में पहली दफा उन्होंने 2/3 मेजोरिटी के साथ दोबारा लाए हैं अपने सूबे में। क्यों? पीटीआई ने वहां डिलीवर किया था, ये बात सच है। परेज खटक ने वहां डिलीवर किया था, इन पे प्रेशर भी था, तबाह सूबा था टेररिज्म की वजह से, लेकिन वहां इन्होंने डिलीवर किया था। इस डिलीवरेंस की वजह से उन्होंने दोबारा इनको इलेक्ट किया। तो बेसिकली यही है कि इमरान खान कभी भी अब मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ नहीं जाएंगे, चाहे 1 लाख केस पर डे हो जाए। वो लॉकडाउन करेंगे, उनकी मीशत का भट्ठा बैठ जाएगा, मीशत का भट्ठा बैठ जाएगा तो उनका नजरिया दफन हो जाएगा। और नजरिया, अगर मैं कहता हूँ कि अगर इस दफा वो फेल होते हैं, ये लॉकडाउन करते हैं, मीशत महंगाई ज्यादा होती है, मसले ज्यादा होते हैं, तो वो भाई साहब जो डंडे वाली सरकार है ना, वो आपका साथ छोड़ देंगे, और वो 1 मिनट में छोड़ेंगे, और MQM दूसरे सेकंड में और लोगों से जाके मिल जाएगी और आपकी हुकूमत गिर जाएगी। और फिर ये ख्वाबे खरगोश, फिर आप कभी, ये अगर इमरान खान में एक और भी यहाँ पे हमारा खैर मौजू नहीं है, लेकिन मैं बात जरूर करूंगा, इमरान खान अगर यहाँ पे फेल होते हैं, अल्लाह ना करे, वो ईमानदार लीडर है, मेरा दिल मानता है, मेरा उन पे यकीन है, वो करप्ट नहीं है, अल्लाह ताला उन्हें जरूर 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 कामयाब करेगा। लेकिन अगर इमरान खान फेल होता है तो ये कौम फेल होती है, और ये कौम 50 साल पीछे जाएगी और जाएगी जाएगी। ये मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कौम फिर उन अंधेरों में जाएगी जहां से आप बड़ी मुश्किल से इमरान खान निकालता है। जी, अपने अगले सवाल की बिल्कुल जानिए। ठीक कहा आपने। जी, आपने जैसे कि पहले कहा कि स्कूल्स में, कॉलेजेस में कोरोना के केसेस 0.00 इतने रेशियो इनकी आई है। तो हुकूमत ने कोई मुतबादिल, आपने कहा कि कोई अल्टरनेटिव नहीं है, फिर भी बंद करके ऑनलाइन जब लेकर आते हैं तो स्कूल्स के लिए कोई नहीं है। आपकी नज़र में क्या अल्टरनेटिव होना चाहिए इसका, मैंने जिससे अपना नुकसान अल्टरनेटिव कम से कम हो? इस सवाल के जवाब में ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ। मैंने कहा था कि अल्टरनेटिव यही है कि आप एसओपीज के साथ स्कूल्स खोलें, खुदारा स्कूल्स खोलें। देखिए, यूनिवर्सिटीज ना खोलें, बीइंग यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनिवर्सिटी ना खोलें, हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, इवन हम पढ़ तो हैं तालीम के साथ। अब जो बच्चा 2-3 महीने फिर तालीम से दूर होगा, 6 महीने वो पहले तालीम से दूर है, आपकी छुट्टियां, अगर मैंने एक दिन कैलकुलेशन देखी, मुझे बड़ी हंसी आई, वो बड़ी वायरल भी हुई थी बात, कि पाकिस्तान में तालीमी डेज के जो डेज है ना, उनसे ज्यादा छुट्टियां हैं। कोई छुट्टी कभी, कोई छुट्टी कभी, कोई छुट्टी 3 महीने, गर्मियों की छुट्टियां, सर्दियों की छुट्टियां। तो पहले आप बेड़ा गर्क कर रहे हैं लोगों का, पहले आप बेड़ा गर्क कर रहे हैं बच्चों का, कि 157 के 150 दिन आप टोटल बच्चों को और स्टूडेंट्स को जो अपने इंस्टीट्यूशन इदारों में बुला रहे हैं। तो फिर उसके बाद आप क्या ड्रामा कर रहे हैं कि आप दोबारा छुट्टियों की छुट्टियां, आप पूरा देखिए 6 महीने पहले, 2-3 महीने ये कोरोना कभी जनवरी तक कंट्रोल होने वाला नहीं है। केसेस बढ़ेंगे और ज्यादा बढ़ेंगे। ये कोरोना जाके कंट्रोल होगा मार्च, अप्रैल और मई के बाद, जब मौसम जो है ना, अल्लाह करे पाकिस्तान को वैक्सीन मिल जाए, तो ये खतरा हो सकता है टल जाए, और जो स्कूल हैं वो ड्यू डेट पे ओपन हो जाए, गवर्नमेंट जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं एजुकेशनल वो हो जाए। लेकिन अगर हमें वैक्सीन नहीं मिलती, चाइना भी फेज 3 में है, ट्रायल के 3rd फेज में है, अल्लाह करे चाइनीज कामयाब हो गए चाइनीज, तो फिर हमें फॉरन वैक्सीन मिल सकती है। लेकिन अमेरिका वाली वैक्सीन, वो क्या नाम है उनका, रऊफ कलासा साहब, उन्होंने ये ब्रेकिंग स्टोरी दी थी कि इमरान खान साहब ने कहा कि वो हमें देंगे ही नहीं,
हमारे पास कोई स्ट्रक्चर है। अब देखें प्राइम मिनिस्टर किस तरह बैठ के बात कर सकता है, वो हमें देंगे नहीं, भैया ट्राई तो करो एटलीस्ट। और अभी जो है वो जी कुछ वज़रान ने रिजर्वेशन रखी है, तो गवर्नमेंट ने अमेरिका से ये हेल्प मांगी है, और ये भी बात हुई है, कल यार भाई की खबर थी कि हो सकता है उन्होंने पाकिस्तानी कंपनी से वायदा किया कि आप यहाँ बैठ के आप अपने ताई बैठ के बनाए वैक्सीन और अपने मुल्क में प्रोवाइड करें। तो अल्लाह करे जब तक वैक्सीन नहीं आती तब तक ये कोरोना रुकने वाला नहीं है बिल्कुल। वैक्सीन आएगी तो आल्दो जो आपका जो एक सिस्टम है, जो हाइप है, एक जो डर है, जो खौफ है, वो कम से कम वो उसमें कमी जरूर आएगी अगर वैक्सीन आ गई। लेकिन जब तक पाकिस्तान में वैक्सीन नहीं आती, आप मार्च अप्रैल, मैं तो कहता हूँ जून जुलाई तक इदारे खुलने के कोई कोई चांसेस नहीं। जी, थैंक यू सो जी मच। आपने हमें इन फैक्ट्स एंड फिगर से आगाह किया, और आखिर में अब हम फिर यही दुआ ही जी कर सकते हैं कि अल्लाह ताला जल्दी ये सारे जो आफत आई हुई है हम पर, हमें इससे निजात दे, और सारे हालात जो हैं वो मामूल पर आ जी सकें। और बाकी अब हम इजाज़त चाहते हैं। और देखते रहिए आप पाकिस्तान प्लस, और अपनी होस्ट कमल उस्मान को इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ आपका भी, आपने हमें बहुत से फैक्ट्स एंड फिगर से आगाह किया और हमें बताया कि हमें आगे क्या करना चाहिए और हालात किस तरफ जा रहे हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। जी थैंक यू।